नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाताय। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाशનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 86 નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। સંગાથા 213 નો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। 213મી ગાથા એનો અન્વયાર્થ ભાવાર્થ તથા પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામી આપેલ પ્રવચનનો કેટલોક ભાગ કર્યો છે। શેષ ભાગ લઈશું। તે પછીથી ગાથા 87 નો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કરીશું અને 87મી ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચનના અંશ લઈશું। તો અત્યારે પહેલા આપણે 87મી ગાથા લઈએ છીએ। બીજા અધિકારની ગાથા 87 સળંગ ગાથા 214 એના ઉपोद्घातમાં કહે છે कि अब परिग्रह त्याग के व्याख्यान को 8 दोहों में कहते हैं। परिग्रह त्याग के व्याख्यान को 8 दोहों में कहते हैं। એટલે 87 થી શરૂ કરીને 8 दोहा। गाथा 87 लातु इच्छति मुड परम भुवनमुपि एतद् अशेषम बहुविध धर्म मिषेण जीवद्वयो अपि एष विशेष। 87મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે દ્વયો अपि एष विशेष मूढ़ो बहुविध धर्म मिषेण। ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों में इतना ही भेद है कि अज्ञानी जन अनेक तरह के धर्म के बहानों से एतद् अशेषम गुणम अपि परम लातु इच्छति। इस समस्त जगत को ही नियम से लेने की इच्छा करता है। ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों में इतना ही भेद है कि अज्ञानी जन अनेक तरह के धर्म के बहाने से इस समस्त जगत को ही नियम से लेने की इच्छा करता है, अर्थात सब संसार के भोगों की इच्छा करता है। तपस्चरण आदि काय क्लेश से स्वर्ग आदि के सुखों को चाहता है और ज्ञानी जन कर्मों के क्षय के लिए तपस्चरण आदि करता है, भोगों का अभिलाषी नहीं है। आ गाथा गुजराती में लईए। अज्ञानी ग्रहवा चहे त्रिभुवन वस्तु अशेष बहुविध धर्म विषय खरे ये जीव उभय विशेष। ज्ञानी तथा अज्ञानी जीवों में શું ફેર છે એ વાત અહીંયા 87મી ગાથામાં કહેવામાં આવી છે। પરિગ્રહ ત્યાગની વાત બતાવી છે ને, તેમાં અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીની વાત લઈને આ પહેલો દોહા કયો છે। કહે છે કે જ્ઞાની તથા અજ્ઞાની જીવોમાં આટલો ભેદ છે કે આટલો ફેર છે કે અજ્ઞાની મનુષ્ય અનેક જાતના ધર્મના બહાનાથી આ આખા વિશ્વને નિશ્ચય લેવાને ગ્રહણ કરવાને ઈચ્છે છે। અર્થાત અજ્ઞાની જપ તપ આદિ કરીને પણ સંસાર સુખની ઈચ્છા કરે છે। એને ધર્મનું પ્રયોજન એ જ દેખાય છે। ભોગોની પ્રાપ્તિ કરવી,
સારી ગતિ પ્રાપ્ત કરવી, બાહ્ય સુખો ને પ્રાપ્ત કરવા, એના કારણરૂપ પદાર્થોને પ્રાપ્ત કરવા, એવી એની દ્રષ્ટિ છે. અને એ માટે એ આ ધર્મ ક્રિયા કરે છે. વાસ્તવમાં એ કઈ એની ધર્મ ક્રિયા છે નહીં, પણ એ એવું માને છે જે શુભ ભાવ છે એ દ્વારા જ એને પુણ્યના બંધ પડે છે અને એનો ઉદય આવતા એવા ફળની પ્રાપ્તિ, એવા સંયોગોની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનુકૂળતાના સંયોગોની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. એટલે અજ્ઞાની તો એની પાછળ જ લાગ્યો છે. એને તો બધા જ વિશ્વના બધા જ ભોગોને ગ્રહણ કરવા છે. સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતાને એને પ્રાપ્ત કરવી છે. એટલે અહીંયા એ વાત લીધી છે કે અનેક જાતના ધર્મના બહાનાથી આ આખા વિશ્વને નિશ્ચય લેવાને, ગ્રહણ કરવાને ઈચ્છે છે. કોણ? અજ્ઞાની મનુષ્ય. અર્થાત અજ્ઞાની જપ તપ આદિ કરીને પણ સંસાર સુખની ઈચ્છા કરે છે. અને જ્ઞાનીઓ તો ઇન્દ્રિય સુખોને પણ તુચ્છ ગણીને તેની અભિલાષા કરતા નથી. જ્ઞાનીની તો દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ હોય છે. એમને તો પોતાનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ અનુભવમાં આવ્યું છે. એટલે હવે એવા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જવા ઈચ્છે છે. આગળ કહે છે કે વિતરાગ સહજ આનંદ એક સુખ આસ્વાદ વાળો એવો પોતાનો શુદ્ધ આત્મા જ ઉપાદેય છે, આશ્રય કરવા લાયક છે, એનું જ લક્ષ કરવા જેવું છે. અને એવી રુચિ વાળું સમ્યક દર્શન છે. સમસ્ત મિથ્યાત્વ રાગાદી આશ્રવોથી ભિન્ન જે પરમાત્માનું જ્ઞાન છે એ સમ્યક જ્ઞાન છે. પોતાના પરમાત્મા સ્વરૂપનું જે જ્ઞાન છે તે સમ્યક જ્ઞાન છે, જેમાં કોઈ મિથ્યાત્વ નથી, રાગ નથી, દ્વેષ નથી, શુભાશુભ ભાવ નથી, આશ્રવ નથી. એટલે એ બધાથી જુદું ભિન્ન પોતાનું પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. અને એવા પરમાત્મા સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે તે સમ્યક જ્ઞાન છે. તથા રાગાદી ભાવોનો ત્યાગ કરી, સર્વ પ્રકારના રાગ અને દ્વેષના ભાવોનો ત્યાગ કરી, અને શુભાશુભ ભાવોનો પણ ત્યાગ કરી, શુદ્ધ આત્મા સ્વરૂપમાં નિશ્ચય વૃત્તિ કરવી, એની ભાવના કરવી, એમાં એકાગ્રતા કરવી, તે સમ્યક ચારિત્ર છે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન પૂર્વક પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરવી એ જ સમ્યક ચારિત્ર છે કે જેમાં એને અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ થાય છે. તે નિશ્ચય રત્નત્રયને એટલે કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર એવા રત્નત્રયના પરિણામે, જે નિશ્ચય રત્નત્રય કહેવાય, જેને મોક્ષ માર્ગ કહેવાય, જેને વિતરાગી પરિણામ કહેવાય, જે સ્વરૂપના આશ્રય થાય છે, તો એવા એ નિશ્ચય રત્નત્રયને યથાર્થ રીતે જે જાણતા નથી તે મૂળ આત્મા સમસ્ત જગતના પદાર્થોને ધર્મના બહાનાથી ગ્રહણ કરવાને ઈચ્છે છે. આ રીતે આ 87મી ગાથા છે, એનો વધુ વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીશું. તે પહેલા અત્યારે જે 86મી ગાથા છે એનું સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ, જેથી આપણને અનુસંધાન પ્રાપ્ત થાય. 86મી ગાથામાં એ વાત ચાલી રહી છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ ભાવલિંગી અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી મુનિઓમાં મહાન અંતર છે. કારણ કે જ્ઞાની મુનિ તો શરીરને પણ જીવથી ભિન્ન જાણી તજી દે છે, શરીરની મમતા તજી સ્વરૂપમાં લીન રહે છે. જ્યારે દ્રવ્યલિંગી મુનિની દેખમાં જ આત્મબુદ્ધિ છે. દ્રવ્યલિંગી મુનિએ જે આ દીક્ષા લીધી છે અને બાહ્યમાં જે 28 મૂળ ગુણ સહિત ચારિત્ર છે એમાં જ એને આત્મબુદ્ધિ છે. જ્યારે ભાવલિંગી મુનિ તો અંતર્મુહૂર્તમાં પોતાના સ્વરૂપને સ્પર્શે છે અને એને તો
આત્મામાંથી આવતા આનંદનો અનુભવ થયો છે, એટલે પોતે બધાથી જુદો ભગવાન આત્મા છે. આ વર્તમાન પર્યાય અને આ પર્યાયને અનુરૂપ જે શરીર પ્રાપ્ત થયું છે એનાથી પણ એ તો જુદા પડી ગયા છે. તો 86મી ગાથા ઉપર વધુ વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 6 વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 65 ઉપર ત્રીજા પેરેગ્રાફથી ગુરુદેવ આગળ આપણને સમજાવે છે. એને અનંત કાળમાં પરિવર્તન કરતે કરતે અનંત અવતાર થઈ ગયા. 84 लाख योनि, एक एक योनि में अनंत अवतार किया मिथ्यात ने कारण. तो मिथ्यात ही संसार है. पर कभी उसने सम्यक दर्शन क्या चीज है और कैसे प्राप्त हो, और प्राप्त हो तो उसकी दशा कैसी है खबर नहीं. समझ में आया. बाहर में जाइए 5-25 में पैसा मिले, अब पैसा याद आवे तो शेष याद आवे. तो 5-25 लाख कहीं नहीं तो शेष तो करोड़पति है. 5-25 लाख नहीं गणित नहीं न हो. पर आए तो करोड़ों अब्जो रुपया होता है. अभी है ना वानिया में अब्जो रुपया है. अब्जो अब्जो हो 100 करोड़ से दूध ये तो जड़ माटी है. ये मेरी चीज है, मेरे लाभ करते हैं तो मुंड मिथ्या दृष्टि है. भले हो पर सुखी तो है, दुखी है. लक्ष्मी मेरी है, मेरी मानता दुख रूप है. जड़ चीज है तो माटी धूल है. અહીં તો દેહ નહીં ના પાડી તો અહીં તો મનની વાત છે ને, પૈસા પૈસાની વાત છે કે આ તો દેહ में मन ने वाणी ने दी. मेरा है ऐसी ममता धमकी थी वो मुनि को होता नहीं. આનું સ્વરૂપ બહુ જૂનું ભાઈ છે. આ વિતરાગ માં રક્ષા તો વિતરાગ સર્વજ્ઞ जिनेश्वर देव, जिनेश्वर देव परमात्मा साक्षात मौजूद विराजते हैं महावीर क्षेत्र में. उसकी आत्मवाणी है. समझ में आया. ममता नहीं तो પછી પિતા માતા પુત્ર કળા તરીકે તો વાત અલગ રહો કે અમે રાજાના પુત્ર છીએ, અમે દિવાનની માતાના દિવાનની બહેનના પુત્ર છીએ. એ તો ક્યાં રહ્યું કે એ તો કઈ છે જ નહીં. ધર્મીને મકસૂદથી ઓળખામાં એ વાત है ही नहीं. वो राग करते हैं उससे ओळखाना वो भी चीज नहीं है, हम कहते हैं. व्यवहार रत्नोत्तरी बराबर अच्छा करते हैं वो आत्मा, ऐसी भी किसान करने की चीज नहीं हम कहते हैं. समझ में आया. पुत्र कलत्रादि तो बात अलग रही. जो अपने आत्मा स्वभाव में निज देह को ही जुदा जानता है. शरीर वाणी की मन की क्रिया अपने से भिन्न जानते हैं संकित धर्मी. उसके पर वस्तु में आत्मभाव नहीं है. देखो स्व वस्तु जो आनंद कंद न्यायिक स्वरूप है ये मेरी चीज है, और मेरी चीज सिवाय दूसरी चीज राग आदि से पर वस्तु उसमें मेरी चीज की मानता उसे है. पर वस्तु में सब ले लिया. राग विकल्प उठते हैं दया दान व्रत का, वो राग वो भी पर वस्तु है.
अरे आई बात क्या कि जो अपनी हो तो निकल न जाए, बराबर भगवान सिद्ध होता है तो ये वस्तु निकल जाती है, ये अपनी है नहीं। ओहो समझ में आया। जिसके पर वस्तु में आत्मभाव नहीं है, बहुतों को अपने से राग से मानकर सब वस्तु पर स्व भगवान ज्ञानानंद राग से आदि बदि पर उसमें आत्मभाव नहीं है। है पर वस्तु में आत्मभावी मैं आत्मा हूँ अथवा मेरी चीज ऐसा भाव नहीं। ये मेरे में नहीं, ये मेरी चीज नहीं, राग आदि मेरे में है ही नहीं। बैरी छोकरा कुटुंब तो क्या ही रह गया, ये तो बेचारा एने कारणे आयो ने कारणे सुखते ने कारणे चले जाएगा। समझ में आया। દીકરો આવે તો ખુશી થઈ જાય, દીકરા આવ્યા, દીકરી આવે તો અરે યાર મારે ખર્ચ કરવો પડશે, નોળી પાછું પરણાવવી પડશે ખર્ચ। लड़की आवे तो लग्न करना पड़ेगा ना पैसा देना पड़ेगा। लड़का आवे तो अपना नाम भी रखेगा और कमाएगा। अरे जगत छेतरपिंडी में चला गया। आए तो त्याग कहा ने परमात्मा प्रकाश करो आया था कि शास्त्र ज्ञान जानते दूसरी चीज तो एक को रहो, पर शास्त्र ज्ञान जानते हैं ये भी पर वस्तु खरीदा है। अने वो शास्त्र ज्ञान जानकर विकल्प तोड़कर निर्विकल्प दृष्टि नहीं करते हैं तो ये भी मूर्ख है। का जड़ जड़ जड़ू आया था ना वाचन हो जो 84 બો નિમિત્તમ થતું કીર્ત લોહી પડી જઈ બીઠું તેણવી બહુ નો રાખવું વર્ષો કે મૂંઢું ન થતું એ કચ્છ રૂપે મૂંઢ છે એમ કે છે। રાશિમાં છે પણ આ અંક તો કીધું ને આ મૂંઢું કીધું ને મૂંઢું સથું પડંતું બી હોઈ જડું એ જડીને આવ્યું संतों को बात बस करते हैं क्या दुनिया नहीं पड़ी है उसको, दुनिया राजी हो खुशी हो चौथू पढ़ंतु भी वही जड़ू आई मुंड कहा था 84 में मुंडू न तथु सच नहीं आया जो न हणी वीपू पंडित जी जो न हणी वीपू तराशी विकल्प है रागनी वृत्ति छोड़ते नहीं यानी एकत्व बुद्धि करते हैं। शास्त्र पढ़कर भी उसका विकल्प अपना है ऐसा मानते हैं। और विकल्प तोड़ते नहीं। ज्ञान स्वभावी भगवान उसमें विकल्प जो शास्त्र पढ़ने का है उसको भी छोड़ते नहीं ने आत्मज्ञान करते नहीं तो वो भी यहाँ जड़ ने मूर्ख के नाम आया है। अब मोटा पैसा वाला करोड़ोपति नब्जोपति पर को मानते हैं कि मूंड है जड़ है हमसे। दुनिया में बड़ी आबरू हो LLB ना पूछा और क्या हो मोटा वकील अपना जो नहीं ना एम ना डॉक्टरों ने एम है मूंड है। ये होशियार मूर्ख होशियार के मूर्ख लोग
કે એને હોશિયાર કહે. રામજીભાઈ બહુ કહેતા પેલા. એક માણસ તો બહુ વખાણ કરશે આવે અમદાવાદમાં, નહીં કે ભૂલવું નામ, અમદાવાદમાં નામ લીધું વકીલ છે. બહુ વ્યાખ્યામાં આવે. હે મંગળભાઈ એક આવે છે અમદાવાદમાં આવે કે રામજીભાઈ તો રામજીભાઈના વખતમાં હતા. એના જેવા તો કઈ વકીલ નહોતા કહેવા. મેં કીધું ભાઈ એને મેં કહ્યું હતું આ બધું ભણતર તમારું કેવું વકીલાતનું મૂર્ખાઈ કરેલું જ્ઞાન છે. હા એ વકીલાતના ભણતર, ડાક્ટરના ભણતર, આ બધા મૂર્ખાઈ ભરેલા ભણતર છે. અહીં તો શાસ્ત્રના ભણતર પણ વિકલ્પ ન તોડે તો મૂર્ખ એમ કે છે. આગળ વધીને કે ભાઈ બાપુ તો નહીં, આત્મા કોણ છે ભાઈ? ક્યાં જો તું, ક્યાં જો, ક્યાં તેરી ચીજ તેરે માની છે. અહીં તો ચોખ્ખી વાત है ને. देही वसंतो निमलो नवी मन नहीं परमपु, क्या कहते हैं शास्त्री? हाँ, भगवान विराजते नहीं अंदर, देह में वस्तु परमात्मा, तू परमात्मा है, तेरे खबर नहीं है. देह वसंतु निमलो नवी मन नहीं परमपु. हाँ 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 हाँ, परमात्मा प्रकाश है ना नाम ग्रंथ का. परमात्मा प्रकाश है जो तुम्हारा परमात्मा प्रकाश नाम है ना, पंडित जी का लड़का नाम परमात्मा प्रकाश नाम है. परमात्मा प्रकाश एक अध्यात्म प्रकाश. परमात्मा प्रकाश आत्मा है एम कहते हैं. नवी मन नहीं परमपु, ये देह वसंतु भी निमलो. देह में रहा भगवान आत्मा, पूर्णानंद का नाम सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध स्वरूपी आत्मा. ऐसा परमात्मा को तुम नहीं मानते. અને दूसरी चीज को अपनी मानते, भाई स्त्री कुटुंब परिवार पुण्य दया दान व्रत राधा. तेरी मानता क्या चली गई? तेरी चीज से हटकर पर में चलेगी मानता. વિતરાગ માર્ગ ઝીણો બાપુ જીનવર દેહ એવી વસ્તુ ક્યાંય છે નહીં. સર્વજ્ઞ વિતરાગ પરમેશ્વર સિવાય આવું સ્પષ્ટ કથન જગતને જાહેર કરવું પણ કઠણ પડી ગયા. અહીં કहीं जिसके पर वस्तु में आत्मभाव नहीं, बहुत टूका शब्द. निज परमात्मा सहजानंद स्वरूप प्रभु ये अपनी चीज, और सिवाय राग आदि विकल्प दयादान व्रत भक्ति आदि का भाव, ये सब पर वस्तु, पर भाव, पर द्रव्य. हाँ हाँ हाँ, इनमें आत्मभाव नहीं करता. આમાં તો એટલું આવ્યું કે વ્યવહાર રત્ન તો નિશ્ચય થશે, એ તો આમાં નિષેધ આવ્યો. વ્યવહાર રત્ન કરીને अपना माने न अपना लाभ माने तो मूंद है एम कहते हैं. अपना लाभ तो स्वभाव से अपना लाभ होता है कि विभाव से अपना लाभ होता है? अपनी चीज में जो स्वभाव है उसके प्रमाण से अपना लाभ होता है. हाँ हाँ, समझ में आया? है सब व्यवहार खत्म हो गया. व्यवहार उड़ी गया બધા. શું થયું? એ આશીર્વાદ હોય કર્મ એ બરાબર. અંતરનો ભગવાનનો આશ્રય પરમાત્મા સ્વરૂપનો
परमात्मा अपना क्या ना, परमात्मा क्या ना अपना देहे वसंतो भी नवी मुनंती परमपु परमात्मा स्वभाव भगवान परम स्वरूप परमाणुभाव विनायक भाव चैतन्य अनंत प्रकाश का पूंज प्रभु। ये तेरी चीज है ना अंदर, उसको न जानते हैं न पर को अपना मानते हैं। जड़ है। अज्ञान ने नौ पुरु ने रब्बी प्रगटे माने का अपनी एक जड़ है उनके नौ पुरु ने लब्बी। उसमें क्या हुआ? अपना भीतरागी संवेदन ज्ञान न हुआ। क्या तेरा नवपुरु की लब्धि क्या नुकसान कारक है? सारे काम भाई। और मुंडात्मा प्रभावों को अपने जानता है। जो मूंड जीव, जड़ जीव, मूर्ख जीव, ये अपनी चीज नहीं। राग दया दान वृत्त विकल्प राग है, ये परभावों को अपना मानते हैं। वो हमारा तो पंडित जी खुलासा है, इसे राग से लाभ होता नहीं, व्यवहार करते करते नीचे होता नहीं, ऐसा ना है। निर्णय कालनी बात है। एक होए तीन काल में परमार्थ का पंथ, परमार्थ का पंथ तीनों काल में एक प्रकार का है। मूढ़ात्मा हाँ वस्तु आचार्य एम पोकारे एम के भाई भैया तो मूढ़ात्मा कया मूर्ख कयो जड़ कयो। मूढ़ात्मा परभाव को अपने जानता है, वही ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। लो अब बेमा अंतर। धर्मी अपने को आत्मा आनंद स्वरूप जानते हैं और राग आदि की क्रिया को अपनी मानते नहीं। अज्ञानी राग आदि क्रिया मेरी है मानते हैं। ये ज्ञानी न अज्ञानी में अंतर ही है। ज्ञानी अज्ञानी में तफावत क्या है? तफावत है। भाई में पुण्यशाली हो, लाखों मानसों क्षमा क्षमा करता हो, उसमें क्या आया? समझ में आया? ये राग का भाव को अपना मानते हैं मूढ़ात्मा। माने राग मेरी चीज से राग भिन्न है ऐसे जानते हैं वो ज्ञानी। राग को अपना मानते हैं, लाभ मानते हैं अज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी में ही तफावत है, ये अंतर है। दूसरा कोई अंतर नहीं कि अज्ञानी ज्ञानी का शरीर कोई रोग हो जाए, काला हो, आबरू न हो, ऐसी कोई चीज नहीं। ज्ञानी का आबरू बड़ी होती है, शरीर सुंदर हो, आबरू बड़ी हो, उसमें क्या आया? थोड़ा जाने तो अज्ञानी, थोड़ा जाने तो अज्ञानी, बहुत जाने तो नहीं। तो राग तुम अपना जाने अज्ञानी, अपना राग न जाने ज्ञानी। थोड़ा जाने अज्ञानी, बहुत जाने ज्ञानी हम नहीं। कभी आप बदल दी आज बात बदल ली। क्या है लिखा है? क्या कहते हैं? इतना जिसके वश पर उसमें आत्मा नहीं। राग आदि भाव पर वस्तु है, उसमें धर्मी का अपना भाव ही मानते नहीं। और मूढ़ात्मा पर भाव को अपने में जानता है। यही ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। दूसरा कोई अंतर नहीं। क्रिया तो विशेष करता हो, दया दान व्रत आदि बहु करते हो, अज्ञानी दया दान व्रत करे नहीं हो, अवृत्ति भी हो।
पर को अपना न मानकर अपना स्वरूप को अपना मानते हैं। अज्ञानी पर को अपना मानते हैं, अपना स्वरूप को नहीं जानते हैं। बस ये मुंडन है। अज्ञानी में इतना अंतर है। अरे आत्म होना के माना नहीं आ બધો લોપ થઈ જાય માણસ કે આ તો લોપ કરते हैं। राज अपना मानते हैं, राज का लाभ मानते हैं, व्यवहार का लोप कर देते हैं। भाई नहीं, तेरे में नहीं भाई। ये दुख है तेरे में है। तुम तो आनंद स्वरूप है ना भगवान। वितराग में भी आनंद का ज्ञान करने वाला तुम है ना। आनंद का नाम स्व का, दुख का तो दुख, आज ये तो दुख है। पर तरफ का झुकाव का भाव दुख है। स्व तरफ का झुकाव का परिणमन आनंद है। सुख आप कैसे कहते हैं? सुख किसको कहते हैं? ये अतीन्द्रिय आनंद अंदर है, उसका स्वाद आना, ये सुख। दूर में सुख नहीं कहीं। અર્જુન પતિ બધા ભિખારા છે। દુખી દુખી બરાબર। થયું ને પરને પોતાના માને એ કારણ। એ દુખી। હા હા હા, શ્રીમદમાં ન કહ્યું? શ્રીમદે લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધું તે કહો। લક્ષ્મી વધી કરોડો અબજો રૂપિયા, કુટુંબ વધ્યું શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવા પણ એ નહીં ગ્રહો। વધવા પણ સંસારનું નરદેહને હારી જો। લક્ષ્મી અને અધિકાર ને આબરૂ વધી પછી કુટુંબ બધા ક્યાં બધા છે? मैं 16 वर्ष की उम्र है। 16 वर्ष श्रीमद 16 वर्ष है कहते हैं। देह की उम्र 16 वर्ष। જે સંકિત पैमाना होता है पहला ही पगार है। લક્ષ્મી અને અધિકાર આબરૂ વધી ₹1,00,000 મહિનાનો પગાર, 1 મહિનાનો લાખ। क्या हुआ धूल। लक्ष्मी અને અધિકાર વધતા ક્યાં વધ્યા? શું વધ્યું? શું એટલે શું? क्या कुटुंब के परिवार, कुटुंब વધ્યું, પરિવાર વધ્યા, દીકરાના દીકરા, ભલી 8 દીકરા, એના દીકરા પેઢી 100 માણસ, એકમાં 2 માણસ। એમાં વધ્યું શું તેરે? વધવા પણ સંસારનું નરદેહને હારી જો। એ તો વધવા પણ સંસારનો છે, નરદેહ હારી લેશે। એનો વિચાર નહીં હો। એક પણ તમને હો એમ કે એનો વિચાર, उसका विचार नहीं हो। एक पण तुमने हो। अरे भगवान से एक पण ऐसा विचार कभी नहीं किया। क्या भजने में क्या तेरे, क्या आत्मा का लाभ हुआ। हाँ 500 નો પગાર હોય અને 200 का પગાર बढ़े, बस खुदी खुदी થઈ જાય। लापसी નો आंदोलन करो। लापसी क्या कहते हैं? लापसी लगाओ। અને 1000 નો પગાર હોય ને 200 ઘટે, દિન થઈ જાય તો કેમ હવે સમજાય? લાખમાં તો મોક્ષ માં પગાર। જેને 200 નો પગાર હોય ને 25 વધે તો રાજ્ય રહી શકે। 1000 નો પગાર 200 વધે, આનાથી તો વધારે 800, એ દુઃખ મને।
બરાબર એ પરચીજને કારણે નથી, આપણી માનતાને કારણે દુઃખી થઈ. હા હા હા, સમજ में आया. महात्मा पर आखिरी से वितराग मार्ग, वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग होता है. पर को अपना माने ये बनता है खुला फर्क है. पर को अपना माने ये मिथ्या दृष्टि कहा था, હવે पर को अपना मानी बंधाय છે. हाँ हाँ हाँ, ये राग भाव जो है शुभ अपना माने तो बंधन करते हैं. બરાબર हाँ हाँ, હવે આ વ્યવહાર રાગ નું બંધન છે, એનાથી અબંધ સ્વરૂપના અબંધ પરિણામ થાય होता है. कारण કે आत्मा अबंध स्वरूपी है ना. आत्मा अबंध स्वरूपी का अबंध परिणाम मोक्ष का कारण रूप अबंध परिणाम होता है. ये व्यवहार से राग से अबंध परिणाम होता है, बंधन भाव से अबंध परिणाम होता है. झूठ है. हाँ हाँ, अरे प्रभु अनंत अवतार છે આ બાપુ. દુનિયાનું કરીને કઈ પૈસા ભળે થાય, એ મકાન બનાવો, એ દાગીના બનાવો, દાગીના ક્યાં કહેતા જેવા કપડા લાવો 5,000 10,000 ના. એક ગામમાં ગયા હતા ને હમણાં, ત્યાં મુંબઈ, રસીભાઈ ના બનેલી નહીં હે, ગયા હતા ને હાજી ત્યાં મખમલ પાથરેલા મકાન 5 કરોડ 5-6 કરોડ રૂપિયા. આજે આ કરવા ગયા હતા, ત્યાં પગલા બધા કરે મખમલ મકાન. એટલા 5 લાખનો તો ઘર વખરો હતો. 5 લાખ का घर वखरा. घर वखरा समझते हैं, फर्नीचर. भाई ने अपना रसिक भाई ने राजकोट वाला બેન ના બનેલી એનો બનેલી છે. ભોજન નું કઈ પગલા બધા આમ મખમલ પાથરેલા બધે મકાનોમાં 5 લાખનું તો ફક્ત ફર્નિચર રહેશે. ધૂળમાં છે ને એમાં બેઠો આમાં જાણે સુખી છે દુઃખી છે. हाँ ही कहते हैं अपना पर को मानते ही बंधता है. हाँ 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 हाँ, और न माने ये मुक्त होता है. या निश्चय से जानना ये अधिकार है. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વ આશ્રય એની ભાવના વાળો હોય છે. અજ્ઞાની ધર્મને બાને, દયા દાન વૃદ્ધ ભક્તિના પરિણામને બાને એને રાગને ઈચ્છે છે, જેમ તેના ફળને પણ ઈચ્છે છે, તો આખા જગતને ઈચ્છે છે એમ કે છે. એક ઓર જ્ઞાનીને આત્મા જશે છે, જ્ઞાનીને રાગથી માંડી આખી દુનિયા જશે છે. આવી વાત છે. अनेक तरह के धर्म के बाने से इस समस्त भुवनम जगत को ही नियम से लेने की इच्छा करते हैं. देखो, જેને રાગ પુણ્યનો રાગ છે એની પણ જેને અભિલાષા છે એ સારા જગતની અભિલાષા છે એમ કે છે. સમજાય છે કાંઈ? જેને પુણ્યના પરિણામની રુચિ અને અભિલાષ છે એના ફળ તરીકે આખી દુનિયાની ઈચ્છા છે ને એમ કે ભુવન, 3 ભુવનની ઈચ્છા છે. હા હા, જ્ઞાનીને એક આત્મા આનંદ સ્વરૂપ આવો આમ છે. સમજાય છે કાંઈ?
की रुचि नहीं અને પુણ્ય परिणाम में जिसको रुचि है इसको सारा जगत की रुचि है। एक को राम ने एक को गाम। सम्यक दृष्टि को आत्मा राम रूपते हैं, अज्ञानी को आत्मा सिवाय सारी जगत उसके रुचि करते हैं। समझाई से कहा ये नहीं। धर्म नहीं बाने ये पुण्य नहीं क्रिया करे उसमें पर पुण्य की इच्छा है और पुण्य की इच्छा से कारण व्यवहार जितना है सबकी भावना उसको है, इन कहते हैं। समझ में आते हैं? जरी सूक्ष्म बात है भैया, आप एक एक गाथा ऊंची चढ़ाते हैं। यह अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा आनंद गुण का निधान भगवान आत्मा है। उसको जिसकी रुचि है, जिसको रुचि है उसकी, तो ये अनंत गुण का भंडार की भावना है उसको तो है। अनंत गुण के भंडार में से अनंत गुण निकालना पड़ जाए ऐसी भावना है। और जिसको भगवान आत्मा आनंद स्वरूप इसकी रुचि नहीं, ये बात जिसको जचती नहीं, ये बात का जिसने आश्रय भाव का लिया नहीं, इसको पुण्य परिणाम की इच्छा है तो उसको सारा जगत की इच्छा है, हम कहते हैं रखड़वानी है इच्छा। समझ में आया? स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार, ऐसा कहते हैं ना। तो स्वनाम चिदानंद भगवान आत्मा परमात्मा प्रकाश है ना, तो परमात्मा स्वरूप अपना जो टिकाली है, इसको जिसकी रुचि और उसकी रुचि में पुषाण उसका ही हो गया, कहीं दूसरी बात उसको पुषाती नहीं। आते हैं पुण्यादि भाव होता है पर उसका पुषाण रुचि नहीं। परमात्मा माने रंगसुख परमात्मा है, परमात्मा माने रंगसुख परमात्मा, क्या परमात्मा माने हाँ परमात्मा हरिहंत परमात्मा तेरी पास गया। हरिहंत परमात्मा कहाँ से हुआ? परमात्मा था तो उसमें से हुआ। हरिहंत परमात्मा पर्याय दशा में हुआ, पर वो दशा में हुआ कहाँ से हुआ? उसका स्वरूप ज परमात्मा था। स्वरूप ज परमात्मा स्वरूप ही आत्मा था, तो उसमें से परमात्मा की पर्याय लग गई। अरे कहीं खबर न भाई, आत्मा एटे शू कहीं आ બધું ધૂળ ને ધુમા, પુણ્ય ને પુણ્યના ફળ ને એ બહારના ભભકા, એની અજ્ઞાની ને रुचि सारा जगत की है। समझ में आया? એને ચાર ગતિના પરિભ્રમણ કરે છે એવી रुचि એમ कहते हैं। है जो लाखों इच्छा करते हैं, अर्थात सब संसार के भोगों की इच्छा करता है। जिसको अपना आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का निधान, उसकी जिसको रुचि नहीं, इसको जिसकी भावना अंतरनी नहीं एकाग्रता, उसको पुण्य की इच्छा होने से सारा जगत की इच्छा ने भोगनी इच्छा सबकी है। अपना आनंद की इच्छा नहीं, इसको पुण्य की इच्छा में सारा भोग की बाई का भोग की इच्छा है कहते हैं। समझ में आया?
सूक्ष्म बात है भाई, धर्म चीज ऐसी है, बराबर, सूक्ष्म है। हाँ, स्वाश्रित निश्चय, सत्य, भगवान आत्मा, शुद्ध परमात्मा स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, सीध स्वरूप सदापद मेरो आते हैं, सीध सदान सदापद मेरो। चेतन रूप अनूप अमूर्त, चेतन रूप अनूप अमूर्त, सीध समान सदापद मेरो। बनारसदास कहते हैं, मेरा स्वरूप तो सदा सिद्ध स्वरूप ही है, छतां इसकी रुचि न करके मोह महात्म यात्म यंग भर में मोह किया पुण्यादि भाव में, मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो। अज्ञान में राग का घेरा न क्या। राग ठीक है, राग का फल भी ठीक मिलेगा। दूर मिले संसार में इसकी मिलेगी नहीं इच्छा, वो सबकी पाप की इच्छा है। समझ में आया? आखा जगत की इच्छा करते हैं कितना है, ये संसार के भोगों की इच्छा करता है। तपस्नादि क्या क्लेश है, साधु हुआ दीक्षा लिया, पंच महाव्रत लिया, तपस्याओं करी, मुनि दीक्षा ने योग्य, पर सम्यक दर्शन नहीं, अपनी दृष्टि की रुचि नहीं, यानी पुण्य की रुचि जिसको है, ये तपस्नादि काय क्लेश है, स्वर्ग आदि सुखों को चाहता है। उसमें से पुण्य बंदा होगा और उसमें स्वर्ग मिलेगा, इसकी आशा मिथ्या दृष्टि की ऐसी आशा है। स्वर्ग में दुख है, स्वर्ग में के सुख नहीं, दूर बद दुख है, मंद कर सामग्री अनुकूल है पर उसकी इच्छा है, दुख है, भोगने का भाव भी दुख है। वो परिभ्रमण जन्म मरण, यानी ये बेज बात करते हैं यहाँ पर कि जिसको परमात्मा आनंद स्वरूप भगवान अपना निज स्वरूप सच्चिदानंद, उसकी जिसको रुचि है तो उसकी भावना स्वरूप कर्म की है, उसमें एकाग्र होने की भावना है। और जिसको ये रुचि नहीं, यानी पुण्य परिणाम करते हैं कि आप अपवास व्रत करे, नियम करे, काय के लिए, पुण्य की इच्छा होने से यानी भोगनी इच्छा है, आत्मा का अनुभव नहीं, आप बाहर ना भोगनी इच्छा है। दया पावा में राग है, राग में इच्छा है, ये भोगनी इच्छा है। आखिरी बात भाई, करनी दया पावવાનો भाव है, वो पुण्य है, राग है। निश्चय से तो स्वरूप की हिंसा है। धन्यवाद बापू, धर्म ने धर्मનું ફળ એ અલૌકિક है, पुण्य ने पुण्यના ફળ લૌકિક સ્વર્ગ આદि ભોગની ભાવના वाला है। समझ में आया? आखिरी बात शा માટે કહો છો? कोई सरल कहो। सरल में सरल है, हो सके यह है। आखिरी का अर्थ उसने सुना नहीं न उसने जचा नहीं, वो कारण आखिर कहते हैं। क्योंकि वर्तमान तो सारी चीजें ऐसे चलती है, बस दया पाओ, व्रत करो, उपवास करो, निपुण लई लो, दीक्षा लो, ये बधी क्रियाओ तो रागनी है। અને રાગની જેને रुचि है उसको पुण्य की रुचि सारा जगत की रुचि है। अपने से नहीं जाना नहीं,
ફૂલની રુચિ છે ને જળની રુચિ છે. स्वाध्याय मंदिर में से जिसकी पुन को रुचि है उसको जड़ की रुचि है. यही बात बापू अनंत काल थी रखड़े से जुना बेचारे तो जो व्याधियों की कैंसर ની વ્યાધિ, હાર્ટફેલ ની વ્યાધિ, ઘડીકામ જુવાન માણસ હોય કઈ બેઠો ને કઈ ફૂલ ખલાસું. હા, એ કહેતા હતા એ મલકાપુર વાળા બે ભાઈબંધ હતા, બેઠા હતા, 28 વર્ષની ઉંમર, જુવાન, નખમાં રોગ નહીં, તો વાત કરતે છે, કરતે કરતે ઓલો આમ જોર કરતે ખૂબ એટલું થયું છે, બે છૂટી ગયું, કાંઈ બીજું પીડા કાંઈ રોગ નહીં, સ્થિતિ પૂરી થઈ ગયા પૂરે. જવાન માનો ભાઈબંધ હતા, એની વાત કરતા કરતે કરતે બસ મરનું पड़ी. ओहो, जड़नी स्थिति पूरी काल में आया, उसमें रुके कौन सकेंगे? इस स्थिति का मुदत यही है. हैं? दूर में डॉक्टर मरी गया बधा. डॉक्टर मोटो सर्जन नहीं आई, हिम्मत कुमार भावनगर मोटो હોસ્પિટલ નો સર્જન અહીં આવી ગયા તો 2-3 વાર કોકનું ઓપરેશન કરતા મને કઈ થાય છે, એ ખુરશી બેઠા દેવડી ગયો રાગને ઓપરેશન કરતા કોકનું ત્યાં ઓપરેશન થઈ ગયાનું. બસ ખુરી બેઠા બેસે પાટણીના હંગા बाहर की शक्ति क्या है? पुण्य की स्थिति पूरी हुई, जिसने शरीर स्थिति रहना का पूरी हुई, चल गई. आयुष हो क्या शुद्ध स्थिति है, अपनी योग्यता भी इतने रहने की, आयुष के कारण से नहीं. आई तो जड़ है, पर है, निमित्त से कथन करने में आता है, पर उस शरीर में रहने की योग्यता इतनी थी, बस हर दे छूटकर चले जाए, ढोर में पशु में चले जाए. चेतन नु भान क्या दशा. अरे प्रभु चैतन्य लक्ष्मी, जिसने भगवान परमात्मा सर्वज्ञ जिनवर देव ऐसा कहते हैं, तेरी अंदर में निधान इतना पड़ा है कि जिसमें से अनंत आनंद पर्याय में निकले तो भी आनंद कभी छूटे नहीं. अखूट भंडार ऐसा भगवान आत्मा, सच्चिदानंद प्रभु, सतनाम शाश्वत ज्ञान में आनंद का निधान, उसकी जिसको रुचि नहीं, हमें पुण्य परिणाम होता है, उसकी जिसको रुचि है, यानी सारा जगत की रुचि है. ज्ञानी को आत्मा की रुचि, सारा जगत की रुचि नहीं. આવી વાતો તારી કરી નહીં, અભ્યાસ નહીં, અને સુનને में आता नहीं. આ દુનિયાની હોળી આખો દી આ કરના ના કરના ના કરના ના કરના, करना क्या मरना, क्षणे क्षणे भाव मरण होता है. आत्मा की शांति जलती है. बराबर समझ में आया. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. सुखधाम अनंत सुसंत चली, दिन रात रहे तद ज्ञान मणि, प्रकांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते